Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel An Equation Let's Make It Easy। यहाँ पर मैं आपके लिए चीज़ों को बहुत ही आसान करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा चीज़ जो है वो बच गया था रिलेशन के अंदर। The total number of relation that can be defined, the total number of relation that can be defined from set A to set B, the is the number of possible subset of A cross B। तो let's say कि हमारे पास A में number of element in set A, let's say this is P, and number of element in set B is equal to Q, then what will be the number of element in set A cross B? It means what will be the number of element in the Cartesian product? We know that very well that A cross B, number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B. So this will be P into Q. So this will be number of element in A cross B will be equal to P into Q. Okay, this is P into Q. अच्छा, अब बेटा इसको बात को ध्यान से पढ़ते, जो यहाँ पे लिखा हुआ है the total number of relation that can be defined from set A to set B is number of possible subset of A cross B। अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B में हमें पता चल चुका है कि देर आर P into Q number of element, so we know that number of subset in any set, so in this set, so number of subset is equal to, now number of subset in A cross B, number of subsets of A cross B, okay, number of subsets of A cross B, okay, number of subset of A cross B is equal to 2 to the power P into Q, okay। So now therefore we can say the total number of relation that can be defined from set A to set B, total number of relation, कितने सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो बेटा जितने सारे सबसेट बन सकते हैं उतने सारे रिलेशन भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं उतने सारे रिलेशन भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस B का हर एक एलिमेंट अपने आप में रिलेशन हो सकता है। A क्रॉस B में जितने सारे एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिलेशन का हिस्सा हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ओके। रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो मतलब A क्रॉस B के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से रिलेशन बनेगा ना। जब हम रिलेशन को डिफाइन कराएंगे सेट A टू सेट B, तो वो क्या करेगा, उन्हीं में से बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग इस पे एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट B इज इक्वल टू 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ये तो वही है ना, तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, number of element in set A is equal to 3, number of element in set B is equal to 2. So what will be the number of element in set A cross B? This is the Cartesian product, and in this Cartesian product we know that 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, these are the ordered pair of this particular Cartesian product. I am not going to write the ordered pair, actually I will be writing the number of element in A cross B, number of element in A cross B
will be equal to 3 into 2. So this will be equal to number of element in A cross B is equal to 6. So now find the number of relation from A to B. So therefore number of relation is equal to number of subsets of A cross B. Okay, number of subsets of A cross B. So this will be 2 to the power 6. So 2 to the power 6 is equal to 32 into 2. It will be 64. Okay, it will be 64. So 64 number of relation can be there. Okay, 64. So the answer is 64. Okay, so next, अब यहां से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, फंक्शन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक बहुत मजेदार। तो यहां से जो है फोड़ा फाड़ी मचाने वाला आपका मैथमेटिक्स क्लास 11th का फोड़ा फाड़ी मचा देने वाला मैथमेटिक्स यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन वो नहीं है जो अपन पार्टी फंक्शन में जाते हैं ना, तो उससे भी अपन रिलेट करेंगे इस फंक्शन को, इस मैथमेटिक्स के फंक्शन को। वो जो फंक्शन में अपन लोग जाते हैं ना, पार्टी में जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं, उस फंक्शन से भी इस फंक्शन का कंपैरिजन करेंगे। पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो बेटा, फंक्शन क्या है? अ रिलेशन। यहां पे जो अंग्रेजी में लिखा रहा है, पहले अंग्रेजी समझते हैं, उसके बाद इसके फीलिंग के ऊपर बात करेंगे। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। अच्छा, तो मतलब एक रिलेशन ए से लेकर के बी में, ऐसा बोल रहा है ये, ए से लेकर के बी में, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब ये जो बी में लोग होते हैं ना, जो बी में लोग होते हैं, एक ही इमेज हो, इसके अंदर जितने भी लोग हैं उसका एक ही इमेज हो। पहले बात को समझना, जैसे यहां पे मैं मान लो ऐसा लिख रखा है 1, ऐसा लिख रखा है 2, ऐसा लिख रखा है 3, तो इसके अंदर आ रहा है 2, 3, 4, ऐसा 5, ऐसा लिखा है ना। तो बोल रहा है कि फंक्शन ए से लेके बी में, ठीक है, ऐसा होगा कि एक एलिमेंट, देखो बात को ध्यान से समझना, यहां पे जो अंग्रेजी बोल रहा है ना, अंग्रेजी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब वन का एक ही इमेज हो, मतलब वन किसी एक ही लोग के साथ लफड़ा रखता हो। ठीक है, वन किसी, मतलब वन किसी दूसरे के साथ लफड़ा ना रखता हो। देखो क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पे एकदम जोर दे रहा है, आपको एकदम इंसिस्ट कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक्चुअली होता क्या बेटा, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेज ऑफ, दिस इज इमेज ऑफ दिस वन। ओके, 2 इज इमेज ऑफ 1। मान लो कि ऐसा है, ठीक है, सॉरी, दिस इज, ये इसको मैप कर रहा है, सो दिस इज 3 इज इमेज ऑफ 2, ऐसा बोलने का तरीका होता है। ठीक है, बोलने का तरीका होता है। और 4 इज इमेज ऑफ 3। ठीक, ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या बनता है? इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये आईना है, आईना, ठीक, तो 1 का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 3 बन रहा है, 3 का इमेज 4 बन रहा है। और इन सारे एलिमेंट्स को प्री इमेज बोलते हैं। इन सारे इमेज को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक, और ये इन सारे इमेज, इन सबको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, सेट बी में उसके पास एक ही इमेज होना चाहिए। इन अदर वर्ड, अब बात को समझते हैं, इन अदर वर्ड, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन सच दैट नो टू पेयर इन द रिलेशन हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लो कि अपना सेट ए है, ऐसा सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, और सेट बी में है, सेट बी में अपने पास था 2, 3, 4, 5। अब हमने एक रिलेशन बना दिया, इन फंक्शन इज अ रिलेशन, एक रिलेशन बना दिया। ऐसा कैसा रिलेशन बना दिया? 1, 2, 2, 3, 3, 4, ऐसा रिलेशन बना दिया। अब बेटा बात को एकदम ध्यान से इस लाइन को पढ़ दो बस। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? अ फंक्शन एफ, फंक्शन को एफ बोलेंगे बाद में, इज अ रिलेशन,
वो एक रिलेशन है such that no two pair in the relation has same first element। ये देखो, ये एक रिलेशन का एक पेयर और ये रिलेशन का एक पेयर। नो टू बोला है, कोई भी दो पेयर ऐसा ना हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, अच्छा सर, अगर मैं रिलेशन को ऐसा लिखता हूं आर, ठीक है, और यहां पे लिख लिया बेटा 1,2 और यहां पे लिख लिया 1,3 और यहां पे लिख लिया 2,3 और यहां पे लिख लिया 3,4, तो बात को समझना जरा। ये जो दो पेयर है बेटा, ये जो पहला दो पेयर है, ये जो फर्स्ट दो पेयर है, ये देखो यहां पे कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। कैसा घोटाला हो रहा है? इन दोनों में आप देख रहे हो तो इन दोनों पेयर में दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, और इसी बात के लिए मना कर रहा था ये बोल रहा था नो टू पेयर इन द रिलेशन हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, ये लफड़ा है। तो यहां पे इन दोनों में क्या हो गया कि इन दोनों का जो पहला एलिमेंट है, इन दोनों पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेम हो गया, और उस वजह से इसको फंक्शन होने से मना कर दिया कि देख भाई ऐसा है कि तू तो अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं इसके ऊपर। ये तो लिखा पढ़ी वाला बात हो गया, ये तो बात हो गया कि अंग्रेजी में जो बातें लिखी हुई थी हमने उसको समझा। अब इस बात का फील क्या है? फील तो यहां से आएगा। देखो बेटा, ऐसा फील ये ऐसा है कि ये है अपना एक सेट ए और ये है अपना एक सेट बी। तो अपने को कहा जा रहा है कि एफ, ऐसे ये बोलते हैं, ये है, ये एफ है, ठीक है, एफ फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू सेट बी, और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक से यहां पे 4 भी लिख देता हूं मैं ना, यहां पे 4 भी लिख, इसमें भी 4 है। तो होता क्या है ना, पहले तो आपको मैं मैपिंग सिखाता हूं कि मैपिंग कैसे कराते हैं। और यहां पे भी है 1, 2, चलो ना, मैं आपके लिए, आप सोचोगे कि सर ये क्यों कुछ भी लिख दे रहा है। तो 1 हटा दिया, ठीक है, ये पूरा ही हट गया। चलो ये एक दूसरा सेट है जिसमें है 2, 3, 4 ऐसा है, और 5 है यहाँ पे। तो आप देखना, मतलब मैं इस फंक्शन को बोला था कि ये फंक्शन x में है और ये फंक्शन कुछ ऐसा है x+1। इसका मतलब जब x1 हो तो ये आउटपुट क्या देगा? 2 देगा। जब ये x2 हो तो आउटपुट क्या देगा? 3 देगा। जब ये x3 हो तो आउटपुट f(x) क्या देगा? 4 देगा। और जब ये 4 हो तो ये क्या देगा? 5 देगा। यहां पे बात को समझते हैं। तो ऐसा कुछ होता है फंक्शन, मतलब एक इनपुट दोगे तो आपको एक ही आउटपुट निकाल के वो देगा। ऐसा थोड़ी होता है ना, कोई दुनिया का ऐसा फंक्शन है ही नहीं कि सिर्फ उसको आप एक ही वैल्यू दोगे और आउटपुट बाहर निकाल के 2 दे देगा। ऐसा कोई दुनिया में फंक्शन अगर होगा तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है ये बेटा रिलेशन तो है, ये बेटा रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले रिलेशन का ये वाला जो मैपिंग है बेटा, ये क्या कह रहा है, इस मैपिंग को अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको यहां बना देता हूं आपके लिए, तो इसमें है 1, 2 और 3, ठीक, और है 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4। तो हो क्या रहा है, 1 का भी इमेज कितना है? 2, और 1 का इमेज है 3 ये, और 2 का इमेज है 3, और 3 का इमेज है 4, 3 का इमेज है 4। तो यहां पर हो क्या है, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें जो बोला गया था आपको, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 and only 1 इमेज इन बी। बट यहां पे जो 1 है इसके कितने सारे इमेज हो गए हैं? दिस 1 हैज 2 इमेज। बेटा इस 1 के कितने इमेज हो गए हैं? 2 इमेज, जो कि अलाउड नहीं है फंक्शन के केस में। इसीलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इसीलिए क्या है, फंक्शन नहीं है। अब इस फंक्शन को चलो एकदम मूड भाषा में ना, एकदम गंवार भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एकदम देहाती आदमी को फंक्शन समझाना है तो वो उसको कैसे समझाएंगे फंक्शन? चलो तो उसको भी समझा देते हैं फंक्शन कैसे क्या होता है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो भी बच्चा होता है ना, बच्चा, ठीक है, उसके क्या होते हैं, उसके पापा होते हैं, पापा। तो एक बच्चे के कितने पापा हो सकते हैं ये बताओ? एक अगर बच्चा है ना तो उसके एक पापा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं क्या? 2 हो सकते हैं क्या, बताओ? नहीं हो सकते ना। तो यहां पे मैं उस चीज को, ये फंक्शन समझाने के लिए एक कोशिश कर रहा हूं आपको। चलो इस सेट में, ठीक है, ऐसा, चलो देखना बात को ध्यान से। मैं तो पहले मैपिंग बना लेता हूं, सारा मैपिंग बना लेता हूं, ठीक, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है।
ठीक, तो मैंने ये मैपिंग बनाया एफ मैप्स ए टू बी, ठीक है, ऐसा एफ मैप्स ए टू बी, और आपको ऐसा लिख दिया, ठीक है। सबकी मैपिंग मैं अलग पेन से कराता हूं, रेड पेन से कराता हूं। चलो, तो ये ऐसा लिख दिया, ठीक है, और ये ऐसा लिख दिया, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, और ये ऐसा है। तो ये वाला जो सेट है बेटा, ये वाला जो सेट है, लेट्स से दिस इज सेट ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज सेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, दिस इज सेट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और दिस इज सेट ऑफ फादर, ठीक है, सेट ऑफ फादर है, ये फादर का सेट, इसमें फादर्स लोग हैं, ठीक है, और इसमें बच्चे लोग हैं, इसमें बच्चे लोग हैं, और इसमें फादर है। तो अब ये बताओ, ये जो है ये और ये, इन दोनों के एक ही पापा है भाई, हो सकता है ना, ये दोनों भाई भाई है, तो दोनों भाई है तो इसके एक पापा है, ये बिल्कुल अलाउड बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, ये बेचारा एक बच्चा और इसका एक पापा, और ये बच्चा और इसका एक पापा, और यहां पे जो है एक बंदा ये है, ये अभी पापा नहीं बना है, ठीक है, इसकी शादी उदी नहीं हुई है लग रहा है, ठीक है, जो भी है। परंतु मेरा कहने का मतलब है, यहां से मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके पापा ना हो, ठीक है, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हो, उन सब का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेट ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है सर, मतलब आपको मैं दूसरी मैपिंग दिखाता हूं फटाफट से। ये लो, दूसरी मैपिंग देखो, ए और ये है आपका सेट बी, मैपिंग देखते हैं, मैपिंग, इस मैपिंग को फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मैपिंग, ठीक। अब ये मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी, एफ मैप्स, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको बेटा ऐसे लिखते हैं एफ और ऐसे, और ये बोलते हैं ए टू बी, तो इसका मतलब है एफ एक फंक्शन है और उसके अंदर जो मैपिंग हो रहा है वो ए टू बी हो रहा है, ठीक है, और अंडर एफ, फंक्शन का नाम एफ है, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, यहाँ पे ये बच्चा, इसका एक पापा, ठीक, ये बच्चा, ठीक है, इसका भी एक पापा, लेकिन बेटा ये जो बच्चा है इसका भी एक पापा, लेकिन ये बच्चा जो है ये खाली है, ये खाली है, ये ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चा हो और उसके जो है उसके पापा तो होने चाहिए, ठीक है ना, बायोलॉजिकल फादर तो होगा ना उसका कोई ना कोई, तो यही है, इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट है, ये वाला सेट नहीं, सॉरी, ये वाला जो मैपिंग है बेटा, ये वाला जो मैपिंग है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस मैपिंग इज नॉट अ फंक्शन, दिस मैपिंग इज फंक्शन, ये वाला मैपिंग फंक्शन है, ठीक है। अब चलो सोचते हैं, पार्टी में तो गए होगे आप लोग सब, पार्टी तो जाते हो ना, पार्टी जाते हो, तो पार्टी में एकदम सब लोग सज धज के एकदम तैयार वैयार होके जाते हैं एकदम मजे से, ठीक है। मान लो आप पार्टी गए, ठीक है, आप पार्टी गए, तो होता क्या है ना, पार्टी में कुछ अच्छे दोस्त लोग भी होते हैं। जब हम पार्टी में जाते हैं और पार्टी से जब हम वापस आते हैं, तो अच्छा या बुरा कैसा था जरूर बोलते हैं कि अरे यार उसके फंक्शन में गया था, मजा नहीं आया, मतलब फंक्शन अच्छा नहीं था, फंक्शन नहीं था, वो ऐसा बोल देता ना, फंक्शन नहीं था, अरे यार उसके फंक्शन में गया था, बेहतरीन, मतलब क्या खूबसूरत फंक्शन था, ऐसा। तो देखो ऐसा होता है देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारे जो है ये प्लेटें लगी हुई, सेट बी में है, सेट बी में क्या है, प्लेटें हैं, थालियां प्लेट्स, दिस इज सेट ऑफ प्लेट्स, ठीक है। और इसमें जो गेस्ट है, गेस्ट लोग हैं, दिस इज सेट ऑफ गेस्ट, पार्टी में जाने वाले लोग हैं ना, पार्टी में जाने वाले लोग हैं। तो ये बंदा जो है ना, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, ये दोनों बेहतरीन दोस्त है, आपस में बेहतरीन दोस्त हैं ये दोनों। और ये बेटा क्या है, प्लेट्स है, थाली है, ये दोनों दोस्त एक ही थाली में खा रहा है, ये दोनों दोस्त एक ही थाली में खा रहा है, बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा बात है यार, खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, अच्छा। ये देखो, ये बेचारा बंदा, ये भी एकदम मस्त एक प्लेट में सिंगल थाली में अपना खाना खा रहा है, और ये भी खा रहा है खाना, तो बेहतरीन फंक्शन है। ये सब आपस में जब वापस जाएंगे तो सब लोग बोलेंगे क्या बात है, बेहतरीन फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, फंक्शन है। यहां पर आ जाओ, यहां पे ये बेटा क्या है, सेट बी क्या है, प्लेट्स, ये सेट बी क्या है, प्लेट्स है, प्लेट्स, दिस इज प्लेट्स, ये सारे प्लेट्स रखे हुए हैं। अब हुआ क्या, ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा,
मस्त खा रहा था इसमें, ठीक है, इस थाली में, ये वाला बंदा खा रहा था इस थाली में, ये वाला बंदा खा रहा था इस थाली में, और ये वाला बंदा जो है ना, ये वाला बंदा खाली बैठा हुआ है, ठीक है, खाली बैठा हुआ है, ये खा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाला बंदा जो है खा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मजा नहीं आएगा, इसको मजा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है ये, ठीक है, इसको खाना चाहिए था लेकिन ये नहीं खा रहा है, ये सिर्फ लोगों को देख रहा है। मान लो ऐसा मान लो कि इसके लिए ना, इसके लिए थाली नहीं है, ठीक, ये थाली सारा हटा देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक, ऐसा लो, ऐसा, तो इसके खाने के लिए थाली नहीं है, इस तो ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा और लोगों को बताएगा यार कितना बुरा फंक्शन था, वो फंक्शन ही नहीं था, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हो। चलो दूसरा, यहां से एक और समझने का कोशिश करते हैं, क्या है ये देखो, दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी, ऐसा है, मैपिंग बना लेते हैं, मैपिंग, ठीक है, मैपिंग बना लेते हैं। सो ये वाला जो है इसका मैपिंग इसके साथ है, ठीक, और ये वाला जो है इसका मैपिंग इसके साथ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये एक बंदा जो है ना, ये देखो एक बंदा, और ये आपका ऐसा और ये ऐसा, ये आपको पता ही है ना कैसे कैसे लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये जो बंदा है ना, ये इस बंदे को देख रहे हो, ये साला कितना, मतलब देखो कैसा है, ये देखो दोनों थाली में खा रहा है, ठीक है, दोनों थाली में खा रहा है, इधर भी खा रहा है, ऐसे 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 दोनों में खा रहा है। तो ये जो है फंक्शन नहीं है ना, अच्छा फंक्शन नहीं है। अगर आप ऐसा समझोगे कि दिस इज द सेट ऑफ चाइल्ड, सेट ऑफ चिल्ड्रन है, ये इसमें बच्चे हैं, तो इस बच्चे के दो पापा है, दो पापा, ये इल्लीगल है ना, ये इल्लीगल है। सो दिस इज नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं है। तो यहां से बहुत क्लियर हो जाता है, यहां से बहुत क्लियर हो जाता है कि सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है, सबका कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, और यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है, उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, उसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ, सेट बी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, और सेट ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं उन सब का केवल एक ही इमेज होना चाहिए। सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट, फिर से बोल रहा हूं बार बार, हर एक एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेट, ठीक है। अब बात को समझते हैं कि क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। मैं सेट पढ़ा के पूरा दिमाग में सेट भरा हुआ, ठीक है। तो ये था फंक्शन, तो आप समझ गए कि कौन सी मैपिंग फंक्शन है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है। तो मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ मैपिंग, ठीक है, एक और मैपिंग बनाता हूँ। चलो आप इसको बताना कि फंक्शन है कि नहीं। बताओ ये वाला मैपिंग फंक्शन है क्या, ये वाला मैपिंग फंक्शन है क्या? जल्दी से बताना है आपको कि ये वाला फंक्शन जो है, आप अपने मन में विचार करो कि क्या ये मैपिंग फंक्शन है, क्या ये मैपिंग फंक्शन है। चलो यहाँ पे रख दिया इसको, क्या ये मैपिंग फंक्शन है? सोचो क्या ये मैपिंग फंक्शन है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली है जिसका इमेज नहीं बना है? नहीं बना है, नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट खाली खोखा बैठा हुआ नहीं है, सबका कुछ ना कुछ इमेज बना हुआ है। तो पहली प्रक्रिया जो है, पहला जो पड़ाव है ये पार करता है। दूसरा सोचना है कि क्या सबका यूनिक इमेज है ना। हाँ ये देखो, इसका ये वाला इमेज है, इसका ये वाला इमेज है, ठीक। तो इसका इमेज अपने आप में यूनिक है ना, इसका इमेज अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल एक सेट है। हाँ ये बिल्कुल सेट नहीं, बिल्कुल ये क्या है, एक फंक्शन है। बार बार सेट बोल दे रहा हूं। हाँ ये वाली मैपिंग फंक्शन है। एफ मैप्स ए टू बी इज अ फंक्शन, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है? एफ का दो वैल्यू डालने पे। बेटा मैं आपको बता दूं कि मेरा अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपको बहुत क्लियर बताता है कि जब इसके अंदर एक बार आप -1 रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और जब आप एक बार +1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा,
और जब एक बार आप 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, और जब आप -2 रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब जब इस बात को हम डायग्रामेटिकली बताते हैं तो ये कैसे होता है, देखो बेटा ये फंक्शन, ये हम लोग मैपिंग करवा रहे हैं, इसका फंक्शन a टू b ऐसे मैप कर रहा है। लेट्स से दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। सेट a के अंदर कौन कौन है, -1, 1, 2 और -2 ऐसा, ठीक है। और ये इसमें 1 है और ये 4 है, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों का इसके साथ हो रहा है और इन दोनों का जो है इसके साथ हो रहा है। तो हाँ ये तो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी ये है कि a के अंदर जितने सारे लोग हैं उन सब का कुछ ना कुछ जो है प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए उसका, कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं, सॉरी उसका कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए। प्री इमेज इन लोगों को बोलते हैं, ठीक है। क्या किसको कहते हैं प्री इमेज, पहले आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो प्री इमेज और इमेज में प्री और इमेज में कोई लफड़ा ना हो, इसीलिए मैं आपको क्या है ये यहाँ पे लेट्स से दिस इज सेट ए एंड लेट्स से दिस इज सेट बी, यहाँ पे a b c d ऐसा है और इसमें है 1 2 3 4 5 ऐसा। सो a का मान लो मैपिंग इसके साथ है, b का मैपिंग मान लो इसके साथ है, c का मैपिंग मान लो इसके साथ है और d का मैपिंग मान लो इसके साथ है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है, इमेज। तो ये वाला जो आपका ये वाला जो है इसको बोलते हैं बेटा वन इज इमेज ऑफ ए। क्या बोलते हैं, वन जो है वो इमेज है, किसका है, इमेज ए का। मतलब कि इस फंक्शन में ए इनपुट देने से आउटपुट आता है 1, ऐसा किसका मतलब है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन मैप करा रहा है ए टू बी मैप करा रहा है फंक्शन, तो 1 इज इमेज ऑफ, और ए को क्या बोला जाता है, ए इज प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ बी, ए इज प्री इमेज ऑफ बी। ए को बोला जाता है कि ए जो है प्री इमेज है किसका, ए प्री इमेज है किसका, सॉरी 1 का, ठीक है। ए प्री इमेज है किसका, 1 का। तो सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, 2 इज इमेज ऑफ बी एंड बी इज प्री इमेज ऑफ 2, सी इज प्री इमेज ऑफ 3 इज इमेज ऑफ सी। तो ये बेसिक है, ठीक है। 4 इज इमेज ऑफ डी एंड डी इज प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। तो इमेज और प्री इमेज ये क्लियर हो गया और आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि फंक्शन वाकई में होता क्या। तो आप कोई भी फंक्शन देखोगे ना, कोई भी दुनिया का फंक्शन आप मन में सोच लो, और वो जितने भी फंक्शन है ना, इन 2-3 जो भी हमने बातें की, इन सबको बेहतरीन तरीके से डिफाइन कराता है। इन सबको जितने भी बातें बोली गई हैं इन सबको डिफाइन कराता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट में बेहतरीन, यहाँ पे फोड़ा फाड़ी तो तब मचेगा ना जब आप समझोगे कि डोमेन क्या होता है फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, और तब मजा का लेवल जो है ना और बढ़ेगा जब हम समझेंगे कि फंक्शन का रेंज क्या होता है। रेंज माने फंक्शन की औकात क्या है, फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक कूदी मार सकता है, ठीक है, ऐसा है ना। और डोमेन मतलब कि वो फंक्शन क्या क्या वैल्यू अपने अंदर लेके जिंदा रह सकता है, तो ये फोड़ा फाड़ी नेक्स्ट में हम लोग मचाएंगे। तब तक के लिए बहुत थैंक यू, और आप लोग सब घर में रहे और अच्छे से पढ़े। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।